नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित किया। 72वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI में सैन्य अभियानों में क्रांतिकारी बदलाव करने की क्षमता है, जिसमें पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण से लेकर स्वास्थ्य निर्णय लेने वाली प्रणाली तक शामिल है। आप नेता होंगे जिन्हें यह तय करना होगा कि इस तकनीकी का लाभ कहां और कैसे उठाया जाए। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में सैन्य नेताओं के लिए भू राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सुरक्षा गठबंधनों की जटिलताओं की एक मजबूत समझ होना बहुत जरूरी है। एयर मार्शल हरदीप बैंस, कमांडेंट NDC, डॉक्टर S. Elumalai, Registrar, University of Madras, officers from MOD and NDC, faculty and members of 62nd NDC course, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be here this morning at National Defence College, the highest seat of strategic learning of our country. I am filled with pride and hope for the nation. Each of you stands at the confluence of knowledge, leadership and strategic vision, ready to contribute to the security and development of our great country. Over the years, the National Defence College has grown both in stature and reputation internationally, and today there is an ever increasing demand amongst the international defence fraternity to be associated with it. The college has shaped the thoughts of many strategic leaders and practitioners of our own country, as also from many friendly foreign countries. I congratulate all 62nd NDC course members being awarded the Master of Philosophy degree today. I am confident that throughout this course you would have had discussions on a wide range of pertinent issues, ideating on challenging scenarios that would have sharpened your intellect and refined your skills. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि इस पाठ्यक्रम के दौरान आपने चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों पर व्यापक प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की होगी, जिससे आपकी वृद्धि तेज हुई है और आपके कौशल परिष्कृत होंगे। Forces to lead a future-ready armed force, they must not only understand these technologies but also harness them to gain a strategic advantage. For instance, artificial intelligence or AI has the potential to revolutionize military operations from predictive analytics to autonomous decision-making systems. You will be the leaders who will have to decide where and how to leverage this technology and where you will deploy this technology to enhance situational awareness or to optimize resource allocation or to improve decision making in real time. That will have to be decided. Along with that, you will also have to decide the threshold level of the decisions artificial intelligence is allowed to take, above which human intervention becomes necessary. This is because increasing रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल। मैं आज मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी 62वें NDS कोर्स के सदस्यों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस कोर्स के दौरान आपने कई प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की होगी, चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों पर विचार विमर्श किया होगा, जिससे आपकी वृद्धि तेज हुई होगी और आपके कौशल में निखार आया होगा। I am confident that throughout this course you would have had discussions on a wide range of pertinent issues, ideating on challenging scenarios that would have sharpened your intellect and refined your skills. NDC must certainly would have enhanced your insight into the strategic challenges being faced by the world today and also equipped you for greater responsibilities of strategic leadership and the policy formulation. Friends, as you stand at the threshold of new responsibilities after completing this prestigious course, it is important to recognize the broader context in which your expertise will be applied. The world around us is evolving rapidly
with new security dynamics and challenges emerging even today. In this fast-changing landscape, where the focus of every nation is to remain ahead of the curve and the future-ready, the road. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। कांग्रेस ने 18 अक्टूबर शुक्रवार को महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी कुछ परियोजनाओं में चंदे के बदले कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया, जिससे करदाताओं का कम से कम 10,000 से 903 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेगड़े ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, जब भी कोई चोर बैंक में चोरी करते जाता होगा तो वह सुरंग बनाता है और अक्सर ऐसी चोरी में चौकीदारी की चोर से मिलीभगत होती है। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक कांड हुआ है जिसमें 10,000 करोड़ की डकैती खुद महायुति सरकार ने कराई है। यह 10,000 करोड़ महाराष्ट्र की जनता की है जो सरकार को टैक्स के रूप में दिए गए हैं। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेगड़े ने आगे कहा कि पहले चंद दो धंधों की स्कीम चल रही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जब से कोर्ट ने इनकी स्कीम को रोका है तब से पैसे बटोरने की नई स्कीमें बनाई जा रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेगड़े कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने में जो प्रति किलोमीटर की लागत बाकी राज्य और NHAI ने आवंटित किए थे, महाराष्ट्र में इस लागत को दोगुना कर दिया गया। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के टैक्स देने वालों की जेब से निकालकर कंपनियों को दिए और दूसरे हाथ से उनसे लिए। यह बीजेपी की लूट है। जब किसी बैंक में सामने के दरवाजे से आना मुश्किल हो तो एक सुरंग बनाता है चोर और बैंक के अंदर लॉकर्स जहां होते हैं वहां घुस जाता है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि वो चोर बैंक के चौकीदार से जरूर मिला होता है। चौकीदार उसको गूढ़ रहस्य बताता है। द गार्ड ऑफ द बैंक normally helps the thief to get into the bank through a tunnel route. What has happened now in Maharashtra is also something similar. जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया है वो लगभग ऐसा ही एक काम है, कांड है, डाका है, चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। 10,000 करोड़ की ये डकैती सरकार ने खुद करवाई है। मैं दोहराना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस massive scam of 10,000 crore rupees has been sponsored by the government of Maharashtra. आप लोग सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहा हूं, और ये 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के हमारे मराठी भाइयों के, हमारे मारवाड़ी भाइयों के, हमारे गुजराती भाइयों के, हमारे तमाम लोग जो महाराष्ट्र के टैक्स पेयर हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी कमाई से 10,000 करोड़ लूटा गया, सरकार द्वारा लूटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के नेता मुबारक गुल ने श्रीनगर राजस्थान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। एलजी मनोज सिंह ने शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ समारोह जो सोमवार 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगा, सभी सदस्य वहाँ आएंगे और शपथ लेंगे। मैं सभी सदस्यों को शपथ दिलाऊंगा और उसके बाद काम शुरू होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो माहौल बन गया है उसे आगे बढ़ाना है। आज ये यहाँ पे हुआ, गवर्नर साहब के यहाँ पे और सेरेमनी हो गई। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब उनके काबीना के साथी भी यहाँ थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। और जो जिम्मेवारी दी गई कि जो ओथ की सेरेमनी होगी मंडे को 2 बजे, और हम ये तमाम जो हमारे मेंबर आ जाएंगे और ओथ उठाएंगे वहाँ पे। उसके बाद ये और भी कुछ कार्रवाई अगर होगी तो हो सकती है, लेकिन उस सेरेमनी की कार्रवाई होगी। पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेट होल्ड का, तो उसको नहीं, वो तो बाद में जो बोर्ड बिजनेस आएगा तो ये मेरे ख्याल में ये स्पेसिफिक शायद ये है कि ओथ सेरेमनी है इसमें,
तो जब वो गवर्नमेंट जिस आएगा वगैरह जो भी है, तो मेरे ख्याल में इसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बाकी यह है कि ये जो जिम्मेदारी दी गई है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मेंबर हजरात हैं उनको वहां पे हम दिलाएंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये जमहूरी जो माहौल जो बन गया है इसको आगे ले जाना है। क्योंकि लोगों ने वोट डाले हैं, बहुत तादाद में लोग निकले, ये जमहूरियत की जीत है, और इसमें बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो नए हैं, और उनको भी हम इसमें थोड़ा शामिल करके वो जो प्रोसीडियर्स है उसको हम बताएंगे कि हम थोड़ा जो हमारे सीनियर जो एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं पहले, उनके साथ उनको तरबियती कैंप भी लगाएंगे, ताकि उनको चले कि कॉल अटेंशन कहाँ पे होता है, कट मोशन क्या होती है या कैसे होना है। क्योंकि हमने भी पहले जब हमने 83 में, तो हमने भी ये सीखा अपने ये जो हमारे सीनियर्स थे। हम कोशिश करेंगे कि, और मुझे यकीन है कि ये जो आज जो हमारे जो मेंबर्स आए हैं, ये लोग मसले उठाएंगे हाउस में, लोगों की जो मुश्किलात है उनको उठाएंगे, और जो ये प्रपोज जो ये करेंगे वो जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ करेगी। क्योंकि यही है, एक दोनों मिलके रियासत के एक खुशहाली रियासत बनाएंगे। जब दोनों मिलके, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन, अगर एक जगह ये कहेंगे, सोचेंगे हमें रियासत को इस मुसीबत से निकालना है, गुर्बत से निकलना, इफलास से निकालना है, और तरक्की करनी है, और दूर करनी, और तरक्की करनी है, और दूर करनी। तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच धुंध की एक परत छा गई है। यमुना नदी पर जहरीले झाग की एक परत तैर रही है, जो सीवेज और औद्योगिक कचरे का मिश्रण है। राजधानी में हवा और पानी दोनों ही प्रदूषित हो चुके हैं, जो दिल्ली में रहने वालों के लिए गंभीर चिंता का कारण बन रहे हैं। एक निवासी का कहना है कि पिछले 2 दिनों से प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे काफी समस्या हो रही है। सरकार को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मेरा नाम आशीष कुमार मीना है। मैंने देख रहा हूँ कि मतलब लास्ट 2-3 दिन से पोल्यूशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है। दिक्कत इतनी होती है कि सुबह निकलती है, ऐसा सीधा थोड़ी बहुत देर तो एडप्ट करने में लगता है खुद को। कभी कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक रहा है पॉल्यूशन वजह से, और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे विंटर आ रही है तो लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और हो जाएगी। सरकार को इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। ये चीज सबकी हेल्प करेगी। इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये तो देखो कि क्या हो क्या रहा है, उसके बाद कंट्रोल कैसे कर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली एक तरह से गैस चैम्बर बन गई है, सांस लेना मुश्किल है और AQI लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे 2025 तक यमुना नदी को साफ कर देंगे। जब लोग यमुना नदी में छठ पूजा का त्योहार मनाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह किन बीमारियों से पीड़ित होंगे। आपके नेतृत्व में वाली दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए आए सारे पैसे विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। हवा हो या पानी जब प्रदूषित है। Today, yet another day, Delhi has become a virtual gas chamber. It is difficult to breathe. The AQI is constantly rising. Quality of air is constantly falling. And now not just the air, even Yamuna Nadi. Visuals are seen how the thick foam is there on the Yamuna Nadi. So whether it's air or water, everything is polluted thanks to Aam Aadmi Party's polluted politics, and we are being given poison. Gopal Rai ji is taking meetings. We have Bhagwant Mann who is blaming somebody else for his Punjab Parali burning. Kejriwal used to say, I will stop Punjab's Parali from burning. I will assure you that there will be pollution mukt Delhi. And now 10 years have passed. They are in power in Punjab also. Now they are blaming Haryana, they are blaming some other states, but they are not taking responsibility for Punjab. They blame Diwali, they have stopped the firecrackers bursting. But please tell me, what about the internal causes of pollution? Road dust, construction dust, industrial pollution, biomass burning, nothing has been done on that. And now even Yamuna ji is so poisonous and polluted. In just 1 or 2% stretch of Delhi, Yamuna ji gets 80% of the pollution. The sewage water is not treated properly. Thousands of crores are spent every year by the Kejriwal government. Where is that money going?
So that money is being spent entirely on corruption, and therefore whether it is water or whether it is the air, poison has been served by Aam Aadmi Party government. They are responsible for the health crisis, emergency crisis they have led Delhiites to. दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्ता ने कहा, गोपाल राय और दिल्ली के सीएम ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया है। दिल्ली में प्रशासन, शासन और वायु प्रदूषण की स्थिति खराब हो गई है। आप सिर्फ नाटक कर रही हैं। आप सरकार और भाजपा के बीच भी झगड़े में दिल्ली की जनता पिस रही है। बातें घिसी बेटी बयान और वही 10 साल से चलती आ रही बहानेबाजी। गोपाल राय जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कार्य करे हैं। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई, और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पाते, और ये लोग इस समय आएंगे, ड्रामा करेंगे कि हमने हॉटस्पॉट लगा दिए, हमने अखबार में ऐड दे दी, हमने वादे किए थे। केजरीवाल जी ये पुरानी स्पीचेस को हर गली में चलाना चाहिए। किस तरीके से केजरीवाल जी कहते थे, मुझे 2 साल दो, मैं यमुना को साफ करके अंदर डुबकी मारूंगा। डुबकी तो दूर, वो यमुना के आसपास भी नहीं दिखाई दे सकते, और अब फिर से बड़ी बातें करेंगे। और उसी समय जो केंद्र सरकार है, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री दिल्ली को डायरेक्टली वॉच करती है। 7 सोए हुए सांसदों की भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 6 सांसद बदल दिए, परंतु क्या वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बदल पाए, रोक पाए? इसका जवाब ना है। उनके सांसदों ने काम नहीं करा, उनकी टिकट काट दी, परंतु दिल्ली को कौन संभालेगा? इन दोनों की लड़ाई में दिल्ली के लोग इस गंदी सांस को लेकर घुट रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, ठंड बढ़ रही है। आज सुबह दिल्ली में AQI 278 था, जो खराब श्रेणी में है। हमने कल टीमें बनाई है, वे आज हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। आनंद विहार में हमने धूल को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मोकर्स लगाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने वाली डीजल बसें मुख्य कारण है कि आनंद विहार हॉटस्पॉट बन गया है। देखिए, अब जैसा मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार जो है सर्दियां भी तेजी के साथ बढ़ेंगी, तो टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की पूर्वानुमान जो है पहले से था। अभी भी पूरी दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो AQI का जो सुबह का स्टेटस है वो 278 है। तो अभी पूरे दिल्ली में जो AQI है वो पुअर कैटेगरी में पहुंचा हुआ है, और उसको देखते हुए सरकार लगातार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पे अपनी सक्रियता बनाए हुए है। आज से सभी जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर कल हमने टीमों का गठन किया था। वो सभी टीमें आज ज्वाइंट रूप से हॉट स्पॉट्स पे दौरा करने के लिए ग्राउंड पे उतर रही हैं, और वहां लोकल पे क्या चीजें, जैसे आपने आनंद विहार की बात की, तो आनंद विहार के अंदर एक मेजर जो चीजें फ्लैक्चुएट कर रही हैं, वहां पे 10 जो है हमने मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगा दिया है डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो डीजल की बसों का जमावड़ा है आनंद विहार के इस तरफ, और उससे ज्यादा उसके सामने दूसरी तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और वहां पे जिस तरह से डीजल की बसों का जमावड़ा है, चारों तरफ से बसें आ रही हैं, वो एक मेजर कारण बना हुआ है, जिसकी वजह से आनंद विहार जो है वो एक मेजर हॉट स्पॉट के रूप में डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए भी आज टीम हमारी ग्राउंड पे जा रही है, और उत्तर प्रदेश के सरकार से भी वहां जो अधिकारी हैं उनसे भी जो है हमारी टीमें संपर्क कर रही हैं कि कैसे वहां पर ज्वाइंट जो है अभियान को चलाया जाए, जिससे आनंद विहार में जो पोल्यूशन का स्तर है उसे भी कम। देखिए, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। डोईवाला के तेलीवाला में रहने वाले शाह हुसैन ने CSI NET JRR 2024 की परीक्षा फिजिक्स विषय में उत्तीर्ण करके 198 रैंक हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है।
बता दें कि यह परीक्षा मात्र 1% से भी कम छात्र उत्तीर्ण कर पाते हैं। नेट JRF एग्जाम्स में जूनियर रिसर्च अवार्ड्स हासिल करने वाले उम्मीदवार को UGC स्कीम के तहत स्कॉलरशिप अमाउंट तथा ITI जैसे स्थानों में PhD करने का मौका मिलता है, जो कि बड़ी उपलब्धियों में शुमार है। नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए बाद उम्मीदवार UGC से मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आए हो ही छात्र ही इस उपलब्धियों को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। छात्र के हौसला अफजाई के लिए उसका सम्मान किया है ताकि अन्य छात्र भी उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। एक ऐसे माहौल से जो बिल्कुल ग्रामीण माहौल है, वहाँ से इस लड़के ने, बच्चे ने जो तरक्की की है, एक आम घर के लड़के से, एक साधारण परिवार से का हिस्सा होते हुए जो इसने अपने तरीके से मेहनत की है और मेहनत करने के बाद ऑल इंडिया में उसमें शरीक हुए हैं और वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पर पास हुए हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ग्रामीण गांव के लोग भी अगर मेहनत करना चाहें, वहाँ के बच्चे भी अगर आगे बढ़ना चाहें, तो उनके लिए एक प्रेरणा है कि वो इनसे नवाज से प्रेरणा लें और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इसी ढंग से आला तालीम देना चाहें, तालीम और शिक्षा की तरफ उन्हें लगाएं, तो इससे समाज का ही भला होगा और देश का ही भला। JRF के एग्ज़ाम को इसने क्वालिफाई किया है और पूर्ण भारतवर्ष में जो है 189 रैंक इसकी आई है। तो फिर मैंने जो है किसी बुद्धिजीवी के सामने बैठ के जो है पता किया कि क्या होता है, तो मुझे पता चला कि 1% लोग ही इस परीक्षा में कामयाब हो पाते हैं। तो मुझे लगा कि एज ए जनप्रतिनिधि मुझे जो है इस बच्चे का एक गांव के अंदर जो है सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बार बार ये महसूस करते हैं कि कई बार हमारे यहाँ जो है स्मैक बेची जाती है और तरह तरह की बुराइयों का जो है हमें मिलता है कि फलाना यूँ कर रहा, फलाना यूँ कर रहा। तो इन बच्चों को मेरा एक संदेश देना भी है कि हथेली वाला और हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं और पढ़ लिख के नेट और JRF जैसी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम को करने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो है एक प्रेरणा हो और वो बच्चे भी, उनके अंदर भी लगन पैदा हो ताकि वो खूब पढ़े लिखें और जो है हर फील्ड में, हर तरीके की जो उनको पसंद हो उस फील्ड में जो है वो अपने गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान, डोएवाला। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।